We are live, Jay. Within the next 15 seconds, we will be live. Deep sir, आप mute पे हैं sir. Deep sir, आप mute पे हैं. He will give countdown 3, 2, 1 whenever we go live. We are just waiting from a cue from Pooja. So he's waiting. Sora 3, 2, 1. We are live now. We can start our session. Good evening, ladies and gentlemen. I am Saurabh Agrawal, Vice President Sales and Marketing from Lupin. And on behalf of Lupin, I would like to extend a very warm welcome to all of you. We really appreciate the time taken by all of you to join us for this program on breast cancer awareness and support. At Lupin, we have always been at the forefront for patient awareness and supporting a cause of good health. This initiative, Protsahan, is also in the same direction. Month of October is celebrated as World Breast Cancer Awareness Month. Being diagnosed with breast cancer alters someone's life. It might be difficult at the beginning to take this up, even more difficult to proceed, regardless of the prognosis. However, every patient experience is unique. As the disease moves forward and the patient understands more, maybe he requires or she requires a lot of inspiration in the troubled times. This inspiration is by having better informed knowledge, having the right support mechanism, and having a ray of hope in management of this disease. With hope of knowledge and awareness about the disease, this initiative Protsahan has been created. Protsahan literally means encouragement, stimulation, a stimulation to make women aware about prevention and being aware about basic symptoms and the risk factors, and also being aware about how this is treatable and how encouragement can help in terms of management of breast cancer. Encouragement never to lose the hope for the women who are suffering from breast cancer. We are very glad that today we are joined by eminent personality, former IPS officer, a social reformer, Dr. Kiran Bedi, to accept this invitation to be part of this noble cause. Thank you very much, ma'am, to be part of this initiative and joining Lupin endeavor to create awareness about breast cancer. We are very happy that Dr. Sudeep Gupta, the eminent oncologist in the field of breast cancer awareness, has joined us today, and Dr. Priya Tiwari, who is leading today's discussion, who has helped us formulate and conceptualize the whole program. We are very sure with eminent personality like Dr. Kiran Bedi, leading oncologist Dr. Sudeep and Dr. Priya, we'll have a very stimulating discussion today on this platform of Protsahan. We are kickstarting this program with the help of all of you, and I'm sure this will give a ray of hope and a support mechanism which we want to provide for all the patients who are going through this and also work towards prevention of this disease. With this background, I would like to hand over the session to our medical head, Dr. Amit Bhargav. Dr. Amit Bhargav will help us understand more about this initiative, and then we'll formally welcome all our eminent guests today. So over to you, Dr. Bhargav, and thank you very much. Thank you very much, Saurabh. So I will not stand much in the way between the experts and all of you out there. Thank you all for joining in. It is said that cancer is a journey and you just have to travel the road alone. And but along the way there are places to derive nourishment. And Protsahan is one such nourishment initiative of Lupin for the breast cancer patients. Since quite some time, Lupin has realized the importance of expanding its focus beyond the typical doctor centricity to that of patient centricity, which is very important in oncology, and even beyond that to people centricity, because that is where the real awareness is also required. As I'm sure everyone will talk about the support system, that is what the people centricity comprises of. Acting on this realization and thought process, we at Lupin, through our oncology division, Lupin Oncology, has taken concrete steps. And it's not just a thought process, we've actually taken practical steps and will continue this journey. One of the first was a collaboration with a Bangalore-based technology company, Nirmay Health Analytics, to develop a
AI-based diagnostic solution, which will facilitate early detection of breast cancer for women. Then in October 2020, just last year, through the digital medium, we connected with over 22 lakh people just to spread awareness about breast cancer. And this year, it is Protsahan, as Saurabh has already told you, the journey from doubt to confidence. The confidence that together we can beat breast cancer. So on that hopeful and optimistic note, let me hand over the session to Dr. Priya Tiwari, a senior consultant in medical oncology from Artemis Hospital, Gurgaon, and who, together with the legendary Dr. Kiran Bedi and the Dr. Sudeep Gupta, will take this program forward. Over to you, ma'am, Dr. Priya Tiwari. Thank you, Lupin Oncology. It's a really wonderful initiative and a platform ब्रेस्ट कैंसर के बारे में बात करने के लिए. और हाँ, इंट्रोडक्शन तो किया जा चुका है, बट अगेन जस्ट टू से अबाउट डॉक्टर किरण बेदी, one of the persons in the world who has actually inspired me, motivated me. I have looked up to her since my childhood. So Dr. Kiran Bedi was first female in India to join the office rank of IPS. She has multiple awards to her credit, and yes, no better person than her is platform ke liye. And second very important person today we have is Dr. Sudeep Gupta, a mentor, a teacher, and a breast cancer expert in the truest of sense. जैसे कि हम अपने ऑन्कोलॉजी सर्कल्स में बात करते हैं कि अगर ब्रेस्ट कैंसर क्लिनिकल प्रॉब्लम्स के लिए कोई भी एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है फॉर ऑल द प्रॉब्लम्स, सो दैट इज डॉक्टर सुदीप गुप्ता. सो वी आर ग्लैड टू हैव यू हियर बोथ ऑफ यू, एंड आई थिंक वी कैन जस्ट स्टार्ट द डिस्कशन. सो व्हाट इज हैपनिंग, अभी ऐसा हो रहा है कि ब्रेस्ट कैंसर के बारे में काफी बातचीत तो हो रही है, बट अवेयरनेस या जागरूकता नहीं है. डर, भय, स्टिग्मा एंड मिथ्स बहुत ज्यादा है. तो इसीलिए ये डिस्कशन बहुत जरूरी है कि पहले तो हम नॉलेज पे क्लैरिटी लाएं, क्योंकि फर्स्ट स्टेप टू बीट एनी फियर इज टू मेक योरसेल्फ अवेयर. सो द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर डॉक्टर सुदीप इज, सर व्हाट एग्जैक्टली इज ब्रेस्ट कैंसर? ब्रेस्ट कैंसर क्या होता है? क्या इसके इंसिडेंस इंडिया में बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं, और ऐसा क्यों हो रहा है? इसके रिस्क फैक्टर्स क्या हैं? सो इफ यू कैन टेक दैट क्वेश्चन. So thank you very much, Dr. Tiwari, for your very kind introduction. I'm delighted to be in the company of, as you said, the legendary Dr. Bedi. She's someone that all of us have looked up to since for a long time. She has inspired many of us. So absolutely delighted. And I would also like to take this opportunity to thank Ms. Reshma Sarwal and Ms. Reshma Castellino, two individuals who have experienced breast cancer. Thank you very much, both of you, for being with us. There can be no greater encouragement in this program than to have both of you in the program. So absolutely grateful to both of you for sparing your time. Coming to your question, Dr. Tiwari, you asked me what is breast cancer. तो ब्रेस्ट कैंसर का मतलब होता है कि ब्रेस्ट के अंदर एक कैंसर वाली गांठ, और कैंसर का मतलब होता है मैलिग्नेंट ट्यूमर, और वो ऐसे ब्रेस्ट कैंसर के सेल होते हैं जो अनकंट्रोल्ड तरीके से प्रोलिफरेट करते हैं. और उसमें जो सबसे बड़ा खतरा होता है कैंसर का, वो ये होता है कि वो लोकली भी बढ़ सकता है, बड़ा होता जा सकता है, और वो दूसरे ऑर्गन्स में फैल भी सकता है, जिसको कि मेटास्टेसिस बोलते हैं. और ये कैंसर की खास प्रॉपर्टी है कि सारी डिजीजेस से हटके वो जहां उसका ओरिजिन होता है उससे वो स्प्रेड हो सकता है दूसरे ऑर्गन्स में, और उसको मेटास्टेसिस बोलते हैं, और वही उसका रियल खतरा है. तो ये है ब्रेस्ट कैंसर. और आपसे आगे चर्चा मुझे लगता है आप करेंगी कि उसके रिस्क फैक्टर क्या होते हैं, वो किन कारणों से होता है, उससे कैसे निपटा जा सकता है, तो उसकी आगे चर्चा करेंगे. थैंक यू वेरी मच. बिल्कुल. किरण जी, जैसे कि हम आजकल देख रहे हैं कि ब्रेस्ट कैंसर की तो बहुत बातें हो रही हैं, बट आपको ऐसा क्या लगता है कि हमारी सोसाइटी में ऐसे कौन कौन से गैप्स हैं जिसकी वजह से लगता है कि स्त्रियां जो हैं वो ब्रेस्ट कैंसर का नाम सुनने से या ब्रेस्ट की प्रॉब्लम्स बताने से भी वो जो है डरती हैं, हस्बैंड को भी नहीं बताती? तो ऐसे कौन कौन से गैप्स हैं जो आपको लगता है कि हमें ब्रेस्ट कैंसर के
मैनेजमेंट को अफेक्ट करती हैं और हम उनको कैसे कम कर सकते हैं? मैम आप म्यूट हैं। मैम you are on mute. सबसे पहले तो मैं लुपिन का धन्यवाद करती हूँ और उनको मुबारक देती हूँ कि ऐसे एक्सपर्ट्स उन्होंने यहाँ बुलाया, और जिन लोगों को एक्सपीरियंस है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उनको भी बुलाया। जैसे मुझे भी ये एक्सपीरियंस है, मेरी फैमिली में ये इशू आई थी और मैंने डायरेक्टली एक्सपीरियंस भी की। और साथ में आपने दो रेशमा जी को बुलाया, रेशमा कैस्टेलोनो को और रेशमा सरवाल को। मैम हमारे साथ एक थर्ड सर्वाइवर भी हैं। वेरी गुड। हाँ, मिस्टर सौरभ अग्रवाल भी हैं जो कि विजिबल नहीं है लेकिन वो हैं अवेलेबल, हम उनकी वॉइस सुन सकते हैं। सो 3 रिकवरिंग एंड रिकवर्ड भी बुलाए, मैं मुबारक देती हूँ। और साथ में एक्सपर्ट्स ऑफ डॉक्टर सुदीप गुप्ता, besides of course डॉक्टर अमित भार्गव। सो मैं पहले तो लुपिन का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया, क्योंकि मुझे मालूम है आज मैंने पिंक इसलिए पहना है क्योंकि हमने पिंक ही पहना था। मैंने जब ये पिंक, वी वेयर पिंक ऑन दिस डे, और हमने बड़े मार्चेस भी किए थे लास्ट मेरी पोस्टिंग में पौंडीचेरी में अवेयरनेस के लिए। हमने बहुत अवेयरनेस रैलीज करी। आई थिंक पहले डॉक्टर प्रिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट इज अवेयरनेस बिफोर शी, अपने आप को समझना, अवेयरनेस कि ये इशू किसी भी ब्रेस्ट के, सिंस इट्स लिंक्ड टू ब्रेस्ट, दैट मींस ब्रेस्ट को एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी समझना जरूरी है। ब्रेस्ट इज नॉट ओनली फॉर ब्रेस्ट फीडिंग द चाइल्ड, ब्रेस्ट केयर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। देयरफॉर सबसे पहले औरत को ये होना चाहिए कि ब्रेस्ट को सिर्फ ढकना ही नहीं है दुपट्टे के साथ, क्योंकि हम अपनी ब्रेस्ट को ढकते भी हैं और वगैरह, लेकिन ब्रेस्ट की केयर कैसे करनी है ताकि हम लोग हेल्दी रहें। सो अवेयरनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जितनी हम अवेयरनेस करें कम है। मेरे ख्याल है लुपिन को, मेरा अभी मालूम नहीं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और लुपिन ने एक कॉल सेंटर खोला है कोई कॉमेंट, क्योंकि आज देखो सीनियर सिटीजन के बारे में, आज सीनियर सिटीजन डे भी है, तो क्या, और उसके लिए एक टोल फ्री नंबर डॉक्टर तिवारी आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया है। So we think, I think we need to have a Lupin call, Lupin supported and others. अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती तो बहुत अच्छा है, अगर है तो नंबर बताए सबको, अगर नहीं है तो कैंसर के बारे में पूछा जाए, कुछ भी पूछो कैंसर के बारे में। तो आई थिंक वी नीड टू हैव अ कॉल सेंटर। पहले मैं अवेयरनेस पर ध्यान दे रही हूँ, क्योंकि लोगों को, हम विमेन अपनी सब ब्रेस्ट को ढकते ही रहते हैं सिर्फ, लेकिन ये नहीं मतलब पता है अंदर क्या हो रहा है। सो आई थिंक और इम्पोर्टेंट ये है कि हम अपनी ब्रेस्ट को समझे कि इसके अंदर भी क्या हो रहा है। सिर्फ बच्चे को दूध ही नहीं पिलाने के लिए, ये ब्रेस्ट की केयर भी करना जरूरी है। सो आई थिंक नंबर 1 अवेयरनेस, और दूसरा ये कि हर महिला रोज नहाती है, मालिश करती है, अपनी अच्छी तरह मालिश करती है। तो वो अपनी जब ब्रेस्ट को मालिश करे, पहली बात तो मालिश करनी जरूरी है, क्योंकि हम लोग जल्दी जल्दी नहा लेते हैं और चले जाते हैं। हम तो हर औरत को बोलेंगे मालिश की आदत डाल, ताकि तू हर अपने पार्ट बॉडी को पहुंच के तुम्हारी बॉडी के साथ हो क्या रहा है, कहाँ कुछ लंप तो नहीं, जैसे डॉक्टर गुप्ता ने बोला, और खासकर ये ब्रेस्ट की मामला है। तो ब्रेस्ट को मालिश जब करेंगे तो पता चल जाएगा कि कहीं कोई लंप तो नहीं है, कहीं कुछ सकतापना तो नहीं आ रहा। सो मैं अभी इस स्टेज पे जवाब यही देना चाहती हूँ कि हर औरत अपनी अपनी बॉडी पर, बॉडी एक टेम्पल है, इट्स अ टेम्पल गिफ्टेड बाय द लॉर्ड। भगवान ने हमें ये टेम्पल है और इसकी देखरेख करनी जरूरी है। हम इसकी पूजा नहीं कर सकते, हम इसकी देखरेख कर सकते। तो मैं अपनी सिस्टर्स को यही रिक्वेस्ट करूंगी कि अपनी मालिश रोज करें, और जब नहाकर मालिश करती हैं तो अपनी ब्रेस्ट को भी मालिश करें, और ब्रेस्ट की जब मालिश करे तब उसको महसूस करे कि ये सॉफ्ट है कि कहीं हार्ड तो नहीं हो रही, और अगर हार्ड हो रही है, मैं अभी वहीं पर लिमिट करना चाहती हूँ अपने आप को। डॉक्टर गुप्ता जी ने बोला कहीं कोई छोटा लंप, बड़ा लंप, ताकि वो बड़ा हो ही नहीं। मैं इस वक्त प्रिवेंशन के लिए कर रही हूँ कि हम पकड़ ले ये, अरे ये छोटा सा लंप कैसे आए, क्योंकि मैं बाद में आपको एक्सपीरियंस बताऊंगी कि मेरी सिस्टर के साथ लंप उसने कैसे आइडेंटिफाई किया,
बाद में बताऊंगी, लेकिन लंप से ही है। सो छोटा लंप या बड़ा लंप, बड़ा ना हो तो बेटर ही। सो दिस इज माय शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर, डॉक्टर तिवारी। Yes, ma'am. So just to summarize, awareness is important. One should not be ashamed about the breast or the breast problem. And yes, अपने breast की देखभाल भी करें जैसे कि आप बाकी सारे शरीर के हिस्से की करते हैं। And अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम महसूस होती है तो आप शर्माए नहीं, घबराए नहीं, आप डॉक्टर के पास जाके उसका प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करवाएं। So, Dr. Sudeep, that brings me back to you, and there is whole discussion which is very important and much needed. एक तो अब यहाँ पे हम रिस्क फैक्टर्स डिस्कस करेंगे और उसके बाद सिम्टम्स भी जानने जरूरी हैं। आपके सवाल बहुत अहम है और आपने पहले मुझसे एक सवाल पूछा था कि ब्रेस्ट कैंसर का इंसिडेंस क्या इंडिया में बढ़ रहा है। तो उसका जो शॉर्ट आंसर है वो ये है कि हाँ, ग्रेजुअली बढ़ रहा है ब्रेस्ट कैंसर का इंसिडेंस और मेनली अर्बन एरियाज में बढ़ रहा है। लेकिन आपके माध्यम से मैं सारे जो दर्शक हैं आज उनको ये भी बताना चाहता हूँ कि वे इतना नहीं घबराइए कि कोई एपिडेमिक हो रहा है, ऐसा नहीं है। धीरे धीरे ग्रेजुअली बढ़ रहा है, पर ऐसा नहीं है कि हर किसी को ब्रेस्ट कैंसर हो रहा है, तो हमें लोगों को आतंकित नहीं करना चाहिए। आपने पूछा रिस्क फैक्टर, तो जो सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है ब्रेस्ट कैंसर का, एक्चुअली सारे कैंसर्स का, वो है इंक्रीजिंग एज। तो आपको पता होगा कि इंडिया के जब इंडिपेंडेंस हुई थी उस समय यहाँ पर एवरेज लाइफ स्पैन करीब करीब 45 साल था, 45 years. So people have to survive to an old enough age to actually get cancers. आज के दिन में इंडिया में जो एवरेज लाइफ स्पैन है विमेन का थोड़ा ज्यादा है और मेन इट इज क्लोज टू 70 years और अबव 70 years. So aging of the population and aging of the individual is the most important risk factor for breast cancer and for many other cancers as well. उसके अलावा कुछ हार्मोनल रिस्क फैक्टर्स होते हैं और हार्मोनल रिस्क फैक्टर्स में हमें ये पता है कि हर और ज्यादातर महिलाओं में मंथली मेंसेस होते हैं, मासिक होता है, तो उसमें एक ओव्यूलेशन होता है। तो जितनी ज्यादा ओव्यूलेटरी साइकिल्स होती हैं किसी भी महिला में, तो वो एक रिस्क फैक्टर होता है फॉर ब्रेस्ट कैंसर। तो यानी कि अर्ली मिनार्क, मिनार्क का मतलब होता है जब मेंसेस की शुरुआत जिस उम्र पे हुई हो। लेट मेनोपॉज, लेट मेनोपॉज मतलब जब बंद हो जाए मेंसेस। ये दोनों रिस्क फैक्टर हैं, अर्ली मिनार्क, लेट मेनोपॉज। पहला बच्चा बड़ी उम्र में होना, अगेन बच्चा जब छोटी उम्र में होता है इट इंटरप्ट्स द ओव्यूलेटरी साइकिल्स। उसके बाद बच्चे नहीं होना, नलीपैरिटी, वो भी एक रिस्क फैक्टर है। तो ये सारे रिस्क फैक्टर्स हैं। कुछ बाहर से खाए हुए हार्मोन्स जो हैं वो भी एक तरीके के वीक रिस्क फैक्टर्स हैं, जैसे कि पोस्ट मेनोपॉजल हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी और टू अ वेरी स्मॉल एक्सटेंट ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। पर मैं ये भी यहाँ पे बता दूं कि लोगों को मैं डराना नहीं चाहता अबाउट ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। वो थोड़ा सा रिस्क बढ़ाते हैं ब्रेस्ट कैंसर का, पर वो ओवेरियन कैंसर के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करते हैं। तो कुल मिला के नतीजा है कि उनसे कैंसर नहीं बढ़ता है। तीसरा जो एक रिस्क फैक्टर है वो है ओबेसिटी, ओवरवेट, स्पेशली इन पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन। तो ये देखा गया है कि जिन महिलाओं का वजन ज्यादा होता है और जिसको कि एक उसका एक आंकड़ा होता है जिसको बोलते हैं बॉडी मास इंडेक्स, जिसको कि वेट डिवाइडेड बाय हाइट एटसेट्रा, वो एक फॉर्मूला होता है। तो जिनका वो ज्यादा होता है उसमें रिस्क फैक्टर ब्रेस्ट कैंसर का ज्यादा है, स्पेशली इन पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन। पर आपको एक ये जानकारी दूं कि ये सारा डेटा जो है ये वेस्टर्न कंट्रीज से आया है। हमारे यहाँ टाटा मेमोरियल सेंटर और एक्ट्रेक्ट में जो शोध हुआ है, जो रिसर्च हुई है at the community level, we found कि over and above overweight and obesity, it is actually the waist hip ratio. तो आपने देखा होगा कि इंडियंस में क्या होता है ना कि पॉट बेली हो जाती है, पेट निकल जाता है। तो अगर आप ओवरवेट भी हैं लेकिन इंक्रीजिंग वेस्ट हिप रेशियो एक्चुअली इज अ रिस्क फैक्टर फॉर ब्रेस्ट कैंसर बिकॉज इट इंडिकेट्स सेंट्रल ओबेसिटी, and central obesity is actually bad not only from the point of view of cancer but also cardiovascular diseases etc. और जो आखिरी एक रिस्क फैक्टर है वो ये है कि अगर आपके किसी फर्स्ट डिग्री रिलेटिव में ब्रेस्ट कैंसर हुआ हो या फॉर एग्जांपल ओवेरियन कैंसर हुआ हो, तो उससे भी रिस्क फैक्टर, ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क थोड़ा सा बढ़ जाता है। और वो मेनली इसलिए होता है कि ऐसा हो सकता है, हमेशा नहीं होता लेकिन ऐसा हो सकता है
कि कुछ ऐसे लोगों में कुछ इनहेरिटेड जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी हो जो कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसमिट हो रही है। तो ये सारे मेनली रिस्क फैक्टर है। अगर मैं समराइज करूं, एजिंग जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, ऑल ऑफ अस हैव टू एज, इट इज अ पार्ट ऑफ आवर एग्जिस्टेंस। दूसरा ओबेसिटी, जिसका हम कुछ कर सकते हैं, ओवरवेट उसका हम कुछ कर सकते हैं। पहला बच्चा एट अ हायर एज इज अ रिस्क फैक्टर, उसके बारे में कुछ कर सकते हैं, मुझे लगता है नहीं भी कर सकते लेकिन कुछ शायद कर भी सकते हैं। और तीसरी चीज है फैमिली हिस्ट्री, उसका भी हम कुछ कर नहीं सकते लेकिन उसके चलते कुछ हद तक सतर्क हो सकते हैं। एक आखिरी चीज, एक थोड़ा सा वीक रिस्क फैक्टर है अल्कोहल कंजम्पशन, और वो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि हो सकता है आगे आने वाले जमाने में कुछ महिलाओं में भी और पुरुषों में भी अल्कोहल के सेवन का जो इंसिडेंस है वो शायद बढ़ जाए, तो वो भी एक तरीके का रिस्क फैक्टर है। सर सेवन तो बढ़ ही रहा है, क्योंकि आजकल तो हर पार्टीज, दुख है तभी भी लोग शराब पी रहे हैं और सुख है तभी भी लोग शराब पी रहे हैं। सो यस, अल्कोहल कंजम्पशन इज इंक्रीजिंग। और मोटापे के बारे में तो शायद बहुत कुछ किया जा सकता है। सो सर थैंक यू, दैट वाज वेरी वेल समराइज्ड। सो हाँ, शायद रिस्क फैक्टर्स के चलते एंड बिकॉज ऑफ द बेटर डायग्नोस्टिक मोडालिटीज जो इंडिया में अवेलेबल है, शायद हम ब्रेस्ट कैंसर थोड़ा ज्यादा देख रहे हैं। सो जो अगला डिस्कशन का पहलू है वो ये कि ब्रेस्ट कैंसर ज्यादा देख रहे हैं, मतलब इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। सो किरण जी ने तो ऑलरेडी हिंट किया ही गांठ के बारे में। सो डॉक्टर सुदीप, आप थोड़ा सा इलेबोरेट करिए, और उसके बाद फिर मैं डॉक्टर किरण बेदी से उनका एक्सपीरियंस सुनना चाहूंगी, और उसके बाद हम सर्वाइवर से उनके एक्सपीरियंसेस सुनेंगे। जी सर। डॉक्टर बेदी ने बिल्कुल सटीक बोला कि ब्रेस्ट के अंदर गांठ यानी कि लंप वो सबसे इम्पोर्टेंट सिम्टम है ब्रेस्ट कैंसर का। और यहाँ पर मैं ये बता दूं कि कुछ महिलाओं में वो जो गांठ है वो कुछ हफ्तों से होती है, कुछ में कुछ महीनों से होती है, पर हमने ये भी देखा है कि कुछ महिलाओं में वो कई सालों से होती है। तो इसमें एक अपॉर्चुनिटी है, जैसा कि उन्होंने बोला कि अगर आप अपने ब्रेस्ट को रेगुलरली पैल्पेट करें तो हो सकता है कि अर्ली स्टेज में पकड़ा जाए। लेकिन ब्रेस्ट में गांठ इज नॉट द ओनली सिम्टम ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, उसके कुछ और सिम्टम्स भी हो सकते हैं। जो बगल है यानी कि आर्मपिट, वहां पर भी गांठ हो सकती है क्योंकि वहां पर लिम्फ नोड्स होते हैं। जो ब्रेस्ट के ऊपर की स्किन है उसमें रेडनेस हो सकती है, उसमें अल्सर हो सकता है, उसमें घाव हो सकता है। जो निपल है वो अंदर की तरफ जा सकती है, जिसको कि मेडिकल टर्मिनोलॉजी में निपल रिट्रैक्शन बोलते हैं। जो निपल है उससे कुछ डिस्चार्ज निकल सकता है, मतलब ब्रेस्ट मिल्क इज द नॉर्मल नेचुरल डिस्चार्ज फ्रॉम द ब्रेस्ट, बट उसके अलावा अगर असामान्य निपल से अगर कोई डिस्चार्ज हो वो भी एक ब्रेस्ट कैंसर का सिम्टम हो सकता है। कभी कभी ब्रेस्ट में पेन भी हो सकता है। तो ये सारे कॉमन सिम्टम्स है ब्रेस्ट कैंसर के। बहुत ही अनकॉमन सिचुएशंस ऐसी हैं कि पहली बार ऐसा पता लगता है कि ब्रेस्ट कैंसर जब लिवर में या लंग में या दूसरी जगह फैल गया हो, तो उससे रिलेटेड जो सिम्टम्स है उससे कभी कभी पता लगता है कि पेशेंट को ब्रेस्ट कैंसर था जो फैल गया। बट मेनली जो सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम्स है वो गांठ है, बगल में गांठ है, ऊपर ब्रेस्ट के ऊपर की स्किन का लाल हो जाना, वहां पर घाव होना, निपल से डिस्चार्ज होना, निपल का अंदर जाना, इन्वर्टेड होना, ये सारे कॉमन सिम्टम्स हैं ब्रेस्ट कैंसर के। तो सर आई थिंक ब्रेस्ट कैंसर के बारे में ब्रेस्ट के बारे में एक अच्छी बात यह है कि ब्रेस्ट जो बहुत सुपरफिशियल ऑर्गन है, इसकी गांठें और कैंसर की गांठें जो हैं वो अर्ली स्टेजेस में ही पता चल सकती हैं, बिफोर द डिजीज हैज मेटास्टेसाइज्ड टू द बॉडी। और इसीलिए शायद ये बहुत जरूरी है कि जैसे डॉक्टर सुदीप ने भी बोला और डॉक्टर किरण जी ने भी बोला कि आप ब्रेस्ट का एग्जामिनेशन करते रहें ताकि जो भी गांठें हैं उनका पता चल जाए। हर गांठ कैंसर की नहीं होती है, इसलिए पैनिक ना करें, लेकिन अगर गांठें आ रही हैं तो आपको डॉक्टर के पास जाके जरूर इन्वेस्टिगेट करवा लेना चाहिए। सो डॉक्टर किरण, इट ब्रिंग्स मी बैक। आपने मेंशन किया अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में, एंड आई थिंक ऑडियंस भी बहुत इंट्रीग्ड होंगे सुनने के लिए कि आप किस पर्सनल एक्सपीरियंस की बात कर रहे थे और वो जर्नी कैसी रही। प्लीज डॉक्टर तिवारी, मैं अपनी पर्सनल जर्नी बताऊंगी। मुझे एक क्वेश्चन डॉक्टर गुप्ता से ये पूछना है ऑन द डाइट। यू टॉक्ड अबाउट, डॉक्टर साहब, व्हाट अबाउट द डाइट? बिकॉज कहा जाता है कि केमिकल ज्यादा, ऑर्गेनिक फूड ज्यादा लो, आपने परफ्यूम ज्यादा ली, सी देयर मेनी अदर कॉजेस, एरिएटेड ड्रिंक्स, सो मेनी थिंग्स आर
moving around. Is that all? And the stress factor, because when I come to my personal incident of from my family, I'll share with you what possible reason could be. But क्या ये भी factors हैं? The kind of food, खाना कैसे खाते हैं, और ऐसा कितना chemical है, कितना polluted है. आपने ठीक कहा कि डाइट का कोरिलेशन तो है कई सारी बीमारियों से, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि डाइट के अंदर जो इंडिविजुअल कंपोनेंट्स है उनका कोई ठोस एविडेंस नहीं है कि वो ये करते हैं या वो करते हैं. जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज है वो ये है कि अगर आप ज्यादा कैलोरीज खाएं, किसी भी तरीके से खाएं, एंड विच इज मिसमैच्ड विद योर आउटपुट, आप दिन भर बैठे हुए अपने ऑफिस में, आप कैलोरीज 2500 खा रहे हैं लेकिन आपका आउटपुट सिर्फ 600 कैलोरीज है. So that is a risk factor for many diseases, primarily by leading to overweight and obesity. जहां तक सवाल रहा इंसेक्टिसाइड्स, दूसरे केमिकल्स एक्सेट्रा, इनका कोई बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं है कि इनसे कैंसर या ब्रेस्ट कैंसर स्पेसिफिकली होता है, क्योंकि आजकल के जमाने में हम लोग एविडेंस बेस्ड मेडिसिन के बारे में बात करते हैं. तो डाइट के हिसाब से जो मेनली, जिसे मैंने बताया कि अल्कोहल या शराब का सेवन जो है वो उसके बारे में डेफिनेट एविडेंस है दैट इज एसोसिएटेड विद द रिस्क ऑफ breast cancer and overweight and obesity. And so overweight and obesity is linked to diet, but it is essentially linked to a mismatch between what you eat and what is your output. So that is what I have to say with respect to, but for individual components of diet, there isn't very strong evidence one way or the other. Right. Now, Dr. Tiwari, I will first of all limit only to the first part of it. That's a fact that my younger sister was a world-renowned clinical psychologist and working in London hospitals. So she had access to all medical care and she was उसको medically very alert थी. लेकिन एक बारी उसे, और हर साल हम लोग कहते हैं ना annual medical test, एक तो मैंने कहा कि अपने आप को मसाज करो, अपनी, जैसे डॉक्टर साहब ने भी कहा, अपने आर्मपिट्स भी ध्यान रखो कि कहीं कोई गांठ तो नहीं है आर्मपिट में भी, और जैसे बाकी भी चीजें उन्होंने बोली, कोई डिसफिगरिंग तो नहीं हो रही ब्रेस्ट में. सो दैट मींस अपने आप को शीशे में भी देखो, सिर्फ मसाज ही नहीं करो, अपने आप को शर्माओ मत, शीशे में भी देखो. सो ये स्पेस फॉर अ वुमन बहुत जरूरी है. कईयों के घरों में तो बाथरूम ही नहीं है औरत के लिए, औरत के लिए बाथरूम नहीं है. इस स्वच्छ अभियान से ही घर, आपको पता है इतनी परसेंटेज तो मैंने खुद देखा है कि पहले घर बना लिए इन्होंने लेकिन बाथरूम नहीं बनाया, घर बना लिया बाथरूम नहीं बनाया, क्योंकि बाथरूम अशुभ है घर के साथ अटैच करना. तो औरत कहाँ जाएगी, नहाएगी कहाँ, देखेगी कहाँ, शीशा कहाँ देखेगी. सो हम किस पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं? हम कह रहे हैं कि बढ़ रहा है, ये कम हो रहा है. मैं कह रही हूँ कि जितना हम टेस्ट करेंगे, जैसे कोविड का जितना टेस्ट करा उतना पता चला टेस्ट का, लेकिन कोविड का टेस्ट कम कर दो, कह देंगे टेस्ट का इन्फेक्शन नहीं है, तो सीरो सर्वे में पता चलेगा एक्चुअली फैला हुआ था कितना. सो आई थिंक घर में स्पेस औरत के लिए, ताकि वो अपना शीशा देख सके और वो अपनी प्राइवेटली नहा सके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये तो दो चीजें. लेकिन अब मैं आ रही थी, आप क्योंकि मेरे से पूछ रहे थे कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, कि मेरी सिस्टर के बाद तो सब कुछ था, और तो उसको कोई शिकायत का मौका नहीं है. लेकिन एक साल सिर्फ उसने मेडिकल टेस्ट मिस किया, क्योंकि हर साल वो अपना एनुअल टेस्ट कराती थी. इस साल वो ट्रैवल कर रही थी तो उसने नहीं टेस्ट कराया और लंप का पता भी नहीं चला. तो एक बारी वो खाना खा रही थी दोपहर का, और एकदम उसका खाना उसकी ब्रेस्ट पर गिरा, खाना खाते हुए ब्रेस्ट पे गिरा. तो वो खाना जहां ब्रेस्ट पे गिरा था, उसमें उसने जब हाथ लगाया खाना हटाने के लिए, तो उसने देखा कि ये पोर्शन हार्ड क्यों है. वहां पर उसने हाथ लगाया, दैट मीन्स वो अपने आप को मसाज रोज कर रही थी, उसने नहीं महसूस किया. शीशे ने में उसको नहीं पता चला, और हाथ से जब खाना गिरा, शायद वो उसको बता रहा है कि ये प्रॉब्लम है. तो जब उसने कहा तो उसने कहा ये हार्ड क्यों है इतना. तो जब हार्ड पता चला हार्ड है, दैट इज व्हेन शी वेंट फॉर अ मेडिकल चेकअप, एंड दैट इज व्हेन इट वाज डिटेक्टेड कि ये लंप है और ये इट्स इन द ब्रेस्ट राइट नाउ. बाकी क्या हुआ वो बाद की बात बताऊंगी, लेकिन दिस इज हाउ शी डिटेक्टेड. सो मैं थर्ड चीज ये कहूंगी कि ये एनुअल टेस्टिंग भी
हाथ में सिर्फ महसूस ही नहीं करना, टेस्टिंग भी, दैट मीन्स हमको क्रिएट करना पड़ेगा मोबाइल सिस्टम्स जहां हम लोकेलिटीज में जाएं और औरत को बुलाएं कि अपना टेस्ट करा, क्योंकि वो घर से टेस्ट नहीं करती। वो कहती मैं फैमिली को, मैं चली जाऊंगी घर से तो मेरी बच्चों को कौन देखेगा, बच्चों ने स्कूल जाना है, मैंने खाना बनाना है, मैंने उसके लिए करना है, तो अपने आप को लीस्ट केयर करती है। औरत है जो हर मदर की हैबिट ये है कि मेरा परिवार को पहले आराम, मेरा आराम बाद में। सो औरत को अपना आराम, अपनी हेल्थ को भी प्रायोरिटी देनी होगी, राइट? सो इसलिए मेरी ये सजेशन है कि डिटेक्ट करने से पहले शी मस्ट वैल्यू कि मैं हूं, मेरी तंदुरुस्ती है तो मेरे परिवार की तंदुरुस्ती है, मैं नहीं हूं, मेरी तंदुरुस्ती नहीं है तो मेरा परिवार भी रुल जाएगा, क्योंकि उनको माँ नहीं मिलेगी, फिर माँ रह जाएगी। सो माँ बीमार, परिवार बीमार, माँ तंदुरुस्त, सारा परिवार तंदुरुस्त, क्योंकि घर तो उसी के आसपास चलता है। बिकॉज बाय एंड लार्ज अगर वो होम मेकर है और अगर वो घर बाहर भी काम कर रही है तो भी वो घर की जिम्मेवारी लगाती, क्योंकि अब वो डुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर औरत हिंदुस्तान में नहीं दुनिया भर में औरत की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो डबल ही रहती है। शादी हो जाए तो डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी, नहीं शादी हुई तो माँ बाप के पास वो अपने आप में इंडिविजुअल है। तो अगर अकेली है तो अपना ध्यान रखे अपने आप, और अगर वो 2 जिम्मेवारियां की मदर और तीसरा बच्चा हो गया तो 3 जिम्मेवारी, ऊपर से उसके अगर ससुराल है तो 4 जिम्मेवारी, और काम की भी जिम्मेदारी मैम, कई बार इफ शी इज अ वर्किंग वुमन, काम की भी जिम्मेवारी, परिवार की भी जिम्मेवारी, बच्चे पैदा करने की भी जिम्मेवारी, बच्चों की देखभाल की भी जिम्मेवारी, क्योंकि हस्बैंड तो बेचारे चले जाएंगे, कमाए हुए वो कहते हैं, लेकिन वो समझते ही भी हमारी कल्चर है। सो मेरी ख्याल ये है अर्ली डिटेक्शन इज द रियल प्रिवेंशन। तो मेरी सिस्टर को यही हुआ, खाना गिरा, सिर्फ 1 साल उसने मेडिकल का चेकअप नहीं किया। सो मैं ये कहूंगी कि सिर्फ मेडिकल चेकअप भी कराएं, लेकिन मेडिकल चेकअप करने कहाँ जाए उसको पता होना चाहिए, क्या मेरे पास नजदीक कोई, कहाँ पर जाऊं, दैट मीन्स आर वी हैविंग मोबाइल चेक्स। सो मैं इसीलिए डॉक्टर प्रिया तिवारी ये कह रही हूँ, एक कोई कॉल सेंटर, कैंसर कॉल सेंटर की भी शायद जरूरत है कि वहां पर वो पूछे कि मुझे ये महसूस हो रहा है, भी मुझे ये परेशानी हो रही, कहाँ जाओ। दिस काइंड ऑफ अवेयरनेस मीन्स अ कॉल सेंटर 1-800 करके, जैसे 100 नंबर पुलिस का है, ऐसे हमको हेल्थ केयर का भी एक कॉल सेंटर, और अगर एक्सक्लूसिवली कैंसर का लेना तो कैंसर का भी। सो आई वुड लिमिट माई सेल्फ टू आंसर फर्दर क्वेश्चंस टू यू एज यू डेवलप on this, that she detected, my sister who is a clinical psychologist, a PhD and a highly qualified, detected her own problem only when the food fell on her breast and she found that there was a lump. Okay, very well said ma'am. So the whole idea is कि एक ऐसा कुछ easy accessibility to credible information, that is maybe a Lupin can take initiative. And yes, if the patients can't, people can't come to the hospital, maybe the hospital in a form of mobile vans can go to the people. That's yes, right. Absolutely. Yes, अब देखिए मैम, जैसे कि आपने भी बात की, डॉक्टर सुदीप ने भी बात की कि अगर कैंसर पता चला, जैसे कि आपके सिस्टर को भी पता चला, तो यहाँ पे मैं अपने सर्वाइवर्स जो हमारे पास यहाँ पे रियल पीपल हु हैव फॉट दिस कैंसर, हु हैव सफर्ड, and they can tell us about their experiences. रेशमा सरवार जी, पहले एक बार हम आपसे सुनेंगे और उसके बाद फिर रेशमा कैस्टेलिनो। जब आपको पता लगा कि गांठ है तब, और फिर जब पता लगा कैंसर की गांठ है, तो क्या रिएक्शन था, कैसे इंटरेक्शन हुआ फैमिली से, कुछ इसके बारे में बताइए। आप म्यूट पे हैं। रेशमा जी, आप अभी भी म्यूट पे हैं, आप अनम्यूट करिए अपने आप को। I have sent a request to you. अब ठीक है। सबसे पहले मेरी नमस्ते टू डॉक्टर प्रिया, डॉक्टर सुदीप, डॉक्टर किरण एंड टू एवरीवन हु इज ऑन दिस फोरम। एंड मेरा एक्सपीरियंस तो यही रहा, इनिशियली जब मुझे पता लगा तो 2 दिन तक तो मैं काफी परेशान हुई, विच वॉज वेरी नेचुरल, बट देन आई डिसाइडेड कि अब हुआ है तो मुझे फाइट करना है। So with my full faith in God, I decided to go for the treatment, and luckily I reached to you people, who's my family now, and I was supported my family by you, by your whole team and the whole staff of Artemis Hospital, जिनके कारण आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और like you know I have fully recovered from my this thing, और मैंने अपने mind में ये
रख लिया था कि मुझे किसी भी तरह से इससे बाहर निकलना है, और इट इज टोटली क्यूरेबल थिंग, इट्स टोटली ट्रीटेबल थिंग। तो मैंने अपनी हिम्मत नहीं हारी, और मैं यही सजेस्ट करूंगी सबको कि वो ट्रीटमेंट के लिए इनिशियल स्टेज पे ही जाएं। जैसे मैंने 3 महीने अपनी गांठ को इग्नोर करा था। मुझे ऐसे था कि मुझे लाइपोमा की प्रॉब्लम है, तो मुझे कहीं ना कहीं वो लम्प्स बॉडी में होते रहते हैं। आई थॉट दिस इज ऑल्सो वन ऑफ देम, बट व्हेन इट्स स्टार्टेड इंक्रीजिंग दैट बॉदर्ड मी, एंड फिर मैंने सोचा कि नहीं, मैं इसको अच्छे से चेक करवाती हूँ। तो आई वुड सजेस्ट कि जैसे ही थोड़ा सा भी शक पड़े तो इमीडिएटली उसको टेस्ट करवाना चाहिए, इग्नोर नहीं करना चाहिए। फिर भी रेशमा जी मुझे एक चीज बताइए जरा, सॉरी आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है। जब कैंसर हो जाता है डायग्नोस, तो इंटरनेट पे भी बहुत सारा इंफॉर्मेशन है, रिश्तेदार भी बहुत सारे आ जाते हैं ऑफर करने के लिए एडवाइसेस। उस चीज से कैसे प्रोटेक्ट करते हो? आपको लगता है कि वो कैसे नॉइस वर्सेस म्यूजिक में आप फर्क करते हो? नहीं, थोड़ा बहुत मैंने किया गूगल, बट ज्यादा नहीं किया। मैंने सोचा नहीं, मैं गॉड को सरेंडर करूंगी, और मुझे जो मेरे डॉक्टर्स कहेंगे आई विल फॉलो दैट। बिकॉज गूगल में थोड़ा सा बंदा कंफ्यूज हो जाता है, नो डाउट। हम लोग तो मेडिकल लाइन के है नहीं, समझ तो इतनी नहीं आती है, थोड़ा बहुत आइडिया मिल जाता है, बट जो स्पेशलिस्ट हैं उनको पता होगा ना कि व्हाट इज गोइंग ऑन इन आवर बॉडी। that makes sense. तो मैंने बस डॉक्टर्स पे भरोसा रखे एंड आई वेंट फॉर द ट्रीटमेंट, एंड आज देखिए आपके सामने मैं बिल्कुल ठीक ठाक बैठी हूँ, और मैं खुश हूँ, मैं जिंदा दिल इंसान हूँ। मेरी फैमिली ने भी मुझे पूरा सपोर्ट करा, एंड मैं निकल गई इस चीज। Yeah, so having a proper faith system and support system is very important, है ना? वो yes. जरूरी है। Yes, रेशमा कैस्टेलिनो, she is a pharmacist, so उनको थोड़ा सा background knowledge about the drugs already था, so her experience is very important. रेशमा जी, please. Yeah, good evening, Kiran ma'am, and everybody on the panel. Nice to be a part of this. आपको मैं हिंदी में भी बात कर सकती हूँ. I'll share my experience. Actually, I was diagnosed at the age of 40 in the year 2018. I was working in Dubai. I had a very nice family, husband, young kids, and everything. So obviously, the diagnosis came as a shock to me, because even I was diagnosed a bit late. When it was diagnosed, it was already under stage 3, because I had a lump in the same place when I was just 18 years old. And then I had got it removed, and the biopsy was done, and it was negative. So I always had that surgery mark in that place. So that part was always, slightly hard. So I continued my life that way. I got my kids and everything. But then one fine day when I noticed that hardness was growing. So that's when I realized, I think it had already gone to stage 3. I went to the hospital and everything. And I was detected with the triple positive breast cancer. That's a HER2, ER2. And then I came to India, did my treatment, and I was okay. But within 8 months, it relapsed to my brain in December 2019. So my message to women is like, when you find anything funny in your body, please go to the doctor. But since 2019, I had the brain metastasis. I did radiation. And now it's we are in October 2021. I'm still alive, thanks to God, and thanks to the support of my family. So I'm not only talking for survivors, I'm also talking for stage 4 patients. Please don't Google, because Google, if you say stage 4 survival rate, it will tell brain metastasis 2 months and all. But we have to take the treatment, trust in God. And dying, everybody has to die one day. So we live well, and we do our work. I sit with my kids for their studies, and of course life is difficult, but it's also joyful when we count our blessings. So, I really like your approach. It's really commendable. Yes, and the message was really loud and clear कि हाँ, अगर stage 4 cancer है, so it's not that all is lost. Yes, that's very important. Yes, ma'am, please go on. Yes. No, you can ask what you. Okay, thank you. So we have another survivor. I think she does not want to reveal her name, but ma'am, can you please tell us about your experiences like the previous 2 survivors have said?
Yes, Dr. Priya, thank you. Thank you, Kiran, Dr. Kiran Bedi, Dr. Sudeep, and all on the panel. I actually had a lump and I was afraid of, going to the doctor because I felt that it would be cancer, but I tried to ignore it. I said maybe it is a hormonal growth or whatever during my periods or whatever it is. So I just lied low on it till it came to my other side of the breast. Then I realized that it is something I have to be alerted about. I ran to my physician who I had great faith in. So the physician immediately checked me up and he told me nothing doing, you're just going to do your sonobamo. And he advised me what to do. And I just went according to whatever he said. Then I selected my own oncologist because I knew that doctor very well. Not that I had got treatment from him, but I heard a lot about him. So I went to him and it was detected at stage 3, but he guided me and told me that you have come late, but we will treat you. And he gave me the course of the treatment. And luckily, after we did the chemotherapies initially, the other side, the lump disappeared. No doubt it was very big, but it became less. It disappeared. And the other side, it was also big and it became less. So he told me to do a surgery. We did the surgery. Then we had a radiation. Then again, after 2 years or 3 years, it came on the other side. There was a scar which my radiologist was very alert. And she found the scar and she alerted the doctor. And we had a surgery done over there. So it was right inside, which was difficult. And the doctor told me, I may have to do a mastectomy or whatever it is. I said, you do what you have to do. It's all up to you when you open up and you decide for yourself. So he said, you don't want to take a call. I said, I don't want to take a call. You decide. If it has to be removed, you remove. So anyway, he managed to save my breast. It was a lumpectomy done for both the breasts in the end, or do 2 different stages. And I kept faith in the doctor. I accepted my treatment and I had a lot of support from my family. The initial fear was I knew I was going to go through all this. Once I accepted it and kept faith in my doctor, I was able to take the journey very well. That is well said, ma'am. Yes. So, Dr. Sudeep, that brings me back to you. जैसे कि अभी काफी सारी बातें हो रही हैं, and we heard a wonderful narrative कि हाँ brain में भी mets आए and that was in 2019 की बात है, and we see she is still doing very well. So लोग जैसे बहुत लोगों को ये myth है कि कैंसर का मतलब तो death sentence होता है, कैंसर हो गया, so I'm doomed to die. So, sir, please shed some light about how the treatment investigations had evolved and what are the current treatment modalities? What are the outcomes? Breast cancers. Thank you for asking me that question. I will just take only 1 minute to reiterate 2 or 3 very important points that came out from the preceding discussion. Yes, one was I completely endorse Dr. Bedi's suggestion of a national helpline that will provide credible, authentic, and scientifically valid information to callers about all cancers. It is not a trivial task. It has to be pulled off at a multidisciplinary national level, but it is definitely worth doing. The second point is that I think a couple of our colleagues who or our friends who had breast cancer pointed out that they sort of ignored their lump for at least a few months. So I think the single most important take-home message might be that please don't ignore a lump or any other symptom that you might have. और ये जब मैं बोल रहा हूँ, I'm cognizant of the fact कि दूसरों को पढ़ाना बहुत आसान है, preach करना है, to practice such things is extremely difficult. Even doctors such as me, we often ignore things, and एक natural psychological mechanism of defense होता है जिसे बोलते हैं avoidance and denial. तो वो जो है वो बड़ा एक strong mechanism है हर किसी के अंदर, but we have to overcome that and sort of approach the healthcare system ASAP. So Abhi, coming back to your question, you asked me about what is the outcome of breast cancer, how is it diagnosed and how is it treated? Yes, sir. So there are 3 different questions. Let me begin with the outcome. Yes. I think it is bad to have breast cancer, but if one has to have a cancer, then I think breast cancer is amongst the so-called, in inverted commas, a good cancer to have. आज के ज़माने में, if we have 100 women diagnosed with breast cancer,
the long-term cure rate is close to about 80 to 85%, I would say. And especially in women with stages 1 to 3, जहाँ पे कैंसर दूसरे ऑर्गन्स में स्प्रेड नहीं हुआ है, long-term cure rates are actually very high, about 85-90%, प्रोवाइडेड के ठीक ट्रीटमेंट मिल जाए. आपका दूसरा सवाल था कि ब्रेस्ट कैंसर का डायग्नोसिस कैसे होता है. तो डायग्नोसिस जो है वो आप डॉक्टर के पास जाते हैं. डॉक्टर आपको सबसे पहले फिजिकली एग्जामिन करेंगे. एग्जामिनेशन में फॉर एग्जांपल अगर उनको ब्रेस्ट के अंदर कोई गांठ मिली तो उसका एक इमेजिंग होती है. उस इमेजिंग का नाम होता है मैमोग्राम. और मैमोग्राम का मतलब सिंपल इंग्लिश में बताऊं तो ब्रेस्ट का एक्सरे. और उसमें जो है वो गांठ पता लगती है, सफेद गांठ पता लगती है. और ब्रेस्ट में जनरली ब्लैक होता है क्योंकि फैट होता है और उसमें सफेद गांठ मालूम पड़ती है. तो पहली बात तो वो जो रेडियोलॉजिस्ट है वही बता देते हैं कि ये गांठ का कितनी प्रोबेबिलिटी है कि ये कैंसर है वर्सेस बिनाइन. तो अगर वो बोलते हैं कि थोड़ी हाई प्रोबेबिलिटी है कि इसमें कैंसर हो सकता है तो फिर अगला टेस्ट होता है डिपेंडिंग कि उसकी लोकल स्टेज क्या है. कभी कभी सीटी स्कैन, दूसरे स्कैन भी करने पड़ते हैं देखने के लिए कि बाकी सब ठीक ठाक है कि नहीं है. लेकिन उसका जो मेन टेस्ट है उसको बोलते हैं बायोप्सी. और आजकल बायोप्सी जो है वो एक नीडल डालते हैं ब्रेस्ट के अंदर, पतली सी नीडल होती है, उसमें एक टुकड़ा निकालते हैं और उस टुकड़े को फिर पैथोलॉजिस्ट की लैब में भेजते हैं और वो फिर उसके बाद उसकी जांच करते हैं. उसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं और उसमें कुछ स्पेशल स्टेन्स भी डालते हैं. वो कलर्ड स्टेन्स होते हैं, उनसे ये पता लगता है कि ब्रेस्ट कैंसर किस प्रकार का ब्रेस्ट कैंसर है. और अभी ये कैस्टेलिनो जी ने बताया कि इनको ट्रिपल पॉजिटिव, मतलब कि एस्ट्रोजन रिसेप्टर, प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर, HER2 रिसेप्टर, उनकी अलग अलग दवाइयां हैं. तो उसके चलते एक एक्सपर्ट पैथोलॉजिस्ट का टीम में होना बहुत जरूरी है. और जब ये निर्धारित हो गया कि हाँ ब्रेस्ट कैंसर है और वो समझिए स्टेज 2 में है, ब्रेस्ट तक ही सीमित है, कहीं और नहीं फैला हुआ है, तो फिर उसके 3 मेन इलाज होते हैं. एक इलाज होता है ऑपरेशन यानी कि सर्जरी. दूसरा इलाज होता है कुछ दवाइयां देना. और दवाइयों में मुख्य 2 तरीके की दवाइयां होती है. एक को कीमोथेरेपी बोलते हैं, दूसरे को हार्मोन थेरेपी बोलते हैं. एक तीसरी आजकल जो दवाई है उसको बोलते हैं टारगेटेड थेरेपी, स्पेशली HER2 टारगेटेड थेरेपी. तो एक हो गया ऑपरेशन, दूसरा हो गया दवाई और तीसरा हो गया रेडियोथेरेपी. तो ये तीनों के एक मिक्स से, इन तीनों के कॉम्बिनेशन से ज्यादातर महिलाओं का इलाज होता है. और जैसा मैंने बोला 85 से 90% महिलाएं जिनका स्टेज 1 या 2 का कैंसर है वो क्योर हो जाएंगी. स्टेज 3 में भी काफी हाई प्रोपोर्शन में क्योर हो जाएंगी और स्टेज 4 में भी अच्छा इलाज हो सकता है, काफी समय तक ठीक रह सकती है. तो ये कुल मिला के ये कहानी है. मैं एक चीज जस्ट बोलना चाहूंगा आपके माध्यम से कि हर किसी ने ये बोला कि आप गूगल मत करो, लेकिन मुझे लगता है कि मैं इससे पूरी तरह सहमत नहीं हूँ. हालांकि गूगल में काफी चीज जंक भी है, लेकिन मुझे लगता है कि पेशेंट्स को हालांकि डॉक्टर्स के ऊपर विश्वास करना चाहिए, लेकिन खुद में अगर एडिशनल इंफॉर्मेशन मिल सके अपने बारे में, अपनी बीमारी के बारे में, तो उससे मदद ही मिलती है, उससे कोई नुकसान नहीं होता. कभी कभी डॉक्टर्स जो है वो झल्ला जाते हैं, कह रहे आप इतना आप गूगल से पढ़ के आप ज्यादा सवाल पूछ रहे हो. पर मुझे लगता है कि ये कोई इतनी खराब बात नहीं है. डॉक्टर्स और पूरे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स भी थोड़े ज्यादा सतर्क रहते हैं, थोड़ा वो भी जो है सोचते हैं, पेशेंट्स को अच्छी तरह समझाते हैं. तो अब वही सवाल वही है, आपने बोला नॉइज वर्सेस सिग्नल के गूगल में बहुत तरीके की कहानियां भी लिखी हुई हैं जो गलत है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि कोई हरज नहीं है किसी तरीके से पेशेंट्स को इंडिपेंडेंट इंफॉर्मेशन मिलने में, क्योंकि उससे मदद मिलती है, उससे कोई नुकसान नहीं होता है एक्चुअली. हाँ सर, एंड समटाइम्स ऐसा होता है कि कई बार वी आल्सो एंड अप बेनिफिटिंग फ्रॉम पेशेंट रिसर्च, ऐसा भी हुआ है. बेनिफिटिंग, देखिए आजकल जो है ना वो पुराने जमाने में एक पैटर्नलिस्टिक मॉडल ऑफ हेल्थ केयर था कि मैं एक भगवान हूँ, मैंने जो है मैं कहीं और से उतरा हूँ, मैंने बता दिया कि ये इलाज होना और यही होगा. मगर आजकल ऐसा नहीं है, वो एक पार्टनरशिप है डॉक्टर्स और पेशेंट्स और हेल्थ केयर सिस्टम के बीच में, हेल्थ केयर और पेशेंट्स के बीच में. एंड इट हैज टू बी अ जॉइंट पार्टनरशिप, एंड जॉइंट पार्टनरशिप कैन नॉट हैपन when there is a gross inequality of information, and information is power. So we should not, doctors should not dread and healthcare system should not dread कि patients ज्यादा better informed हो रहे हैं. वो तो अच्छी बात है, उसमें कोई मेरी हो सकता है मैं ज्यादातर लोग मेरे से सहमत नहीं हो, पर मुझे लगता है कोई इसका नुकसान नहीं है. एक और आखिरी चीज जस्ट 10 सेकंड में बोलना चाहूंगा कि मेरे इतने सारे जो मैंने विवरण दिया कि कैसे होता है ब्रेस्ट कैंसर का इलाज,
इससे ये तो थोड़ा सा मुझे लगता है अपरेंट हो गया होगा कि ब्रेस्ट कैंसर का इलाज कोई एक तरीके का डॉक्टर या एक हेल्थ केयर प्रोफेशनल नहीं कर सकता। तो हमारी सरकार को, हमारे हेल्थ केयर, हमारी सोसाइटी को और पेशेंट्स को भी इंश्योर करना चाहिए कि हमारे पास मल्टी डिसिप्लिनरी एक्सपर्टीज हो। और मल्टी डिसिप्लिनरी का मतलब है रेडियोलॉजिस्ट, पैथोलॉजिस्ट, सर्जन, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, रेडियोथेरेपी, नर्स, फिजियोथेरेपिस्ट, रिहैबिलिटेशन, साइकोलॉजिस्ट, पैलिएटिव केयर, एवरीबडी एल्स हु इज रिक्वायर्ड। सो ये नहीं है कि मैं अकेला अपने रूम में बैठा बैठा मैं जो है पूरा सॉल्यूशन हूँ हर प्रॉब्लम का, वो नहीं हो सकता। और इसके लिए ये मैंने बोल तो गया, मैं 10 सेकंड में, या हो सकता है 20 सेकंड लगे हो, मगर इसको कारगर बनाने में, इसको एस्टैब्लिश करने में हमारी सोसाइटी को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। यस सर, आई एग्री। तो पहले तो ये था कि सर अगर ओपीडी रूम में पेशेंट आ रहे हैं तो पेशेंट को डॉक्टर से डील करना है, बीमारी से डील करना है। हमें ये मैसेज देना है कि डॉक्टर और पेशेंट एक ही तरफ खड़े हैं, तो आपस में वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है, और वी आर फाइटिंग अगेंस्ट द कैंसर। तो इट्स अ जर्नी विच इज शेयर्ड बाय पेशेंट एंड द डॉक्टर अगेंस्ट कैंसर। तो ऐसा मैसेज जाना चाहिए, ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, हमारा वो एक बैंडविड्थ डेवलप होना चाहिए पेशेंट। देखिए डॉक्टर बेदी ने जो इतना बढ़िया सजेशन दिया कि एक ऑथेंटिक हेल्पलाइन होनी चाहिए। मैं ये भी बता दूं कि कई तरीके की ऑड्स एंड बिट्स हेल्पलाइंस हैं, किसी ने कोई कॉल सेंटर कुछ, लेकिन क्या है ना कि इट हैज टू बी एन ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन। अगर कोई वहां पे कॉल करे तो उसको ये पता हो कि whatever information I'm getting is backed by the best evidence in the world, has been curated by the foremost experts, और इंफॉर्मेशन क्योंकि अपडेट होती रहती है, तो वो ये नहीं है कि आज 1 अक्टूबर को जो इंफॉर्मेशन है फिर वो वैसी की वैसी फ्रोजन रहेगी अगले 3 साल। उसको कॉन्टिन्यूअसली अपडेट भी करना पड़ेगा। और ये एक कैंसर नहीं, अगर सारे कैंसर्स के लिए करना है, बट आई टेल यू इट इज अ ह्यूमंगस टास्क, बट इट इज वर्थ डूइंग। तो फिर पेशेंट जब डॉक्टर सुदीप गुप्ता के पास आएंगे, वो मेरे को ये बताएंगे कि सर मैंने जो है हेल्पलाइन में ये सुना था, आप ये बोल रहे हो, तो आप थोड़ा सा मेरे को एक्सप्लेन करिए। और उससे डॉक्टर गुप्ता को डरना नहीं चाहिए। दैट इज करेक्ट, दैट इज हाउ इट शुड बी, प्लीज एज फार एज आई थिंक। सर एक चीज और सर, जैसे कि आपने बोला ना कि, और ये एक बहुत बड़ा आई थिंक एक मिथ है जो कि शायद हमें इस प्लेटफॉर्म पे एड्रेस करना चाहिए। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि अगर हमने निडल डाल दी तो हमने कैंसर को छेड़ दिया, तो बायोप्सी करने से तो कैंसर एक्चुअली बढ़ जाता है। तो नहीं, ये लार्जली ये करेक्ट नहीं है कि उसके अंदर नीडल डालने से वो फैल जाता है। एटलीस्ट ब्रेस्ट कैंसर में तो नहीं है। और बिना नीडल डाले, बिना उसकी बायोप्सी किए तो कोई और तरीका ही नहीं है उसकी डायग्नोसिस का और उसके इलाज का। तो उससे प्लीज मत घबराइए, उसको वो तो करना ही है और उससे कोई नुकसान नहीं होता। ये आपने बिल्कुल ठीक कहा। सो द मैसेज इज क्लियर, बायोप्सी से डरिए मत, वो जरूरी है मैनेजमेंट के पार्ट के लिए। सो डॉक्टर किरण, इट ब्रिंग्स मी बैक टू यू। मैम, आप एक्सपीरियंसेस के बारे में बता रहे थे, तो एक बार आप कुछ लाइट डालेंगे कि जब ट्रीटमेंट हो रहा था आपके सिस्टर का, उस समय कैसा एक्सपीरियंस था, क्या प्रॉब्लम्स हुई, क्या दिक्कतें हुई? और आई थिंक वन ऑफ द सर्वाइवर्स कैन आल्सो टेक अप दिस क्वेश्चन, स्पेशली लोग कीमोथेरेपी के नाम से बहुत डरते हैं, तो और कीमोथेरेपी नहीं करवाना चाहते, तो उसके बारे में क्या एक्सपीरियंसेस थे? मे बी आप एक बार, मैं जरूर चाहूंगी कि आप इसके बारे में जरूर हमारे ऑडियंस को कुछ बताइए। मैम आप म्यूट है। हाँ, जैसे डॉक्टर गुप्ता ने बोला वो ठीक, बिकॉज वो खुद एक स्कॉलर थी, प्रोफेसर थी, टीचर थी, सो शी वाज ओपन टू लर्निंग। उसने बहुत रिसर्च की अपने इशू। उसका हस्बैंड, मेरा ब्रदर इन लॉ भी, बोथ ऑफ देम वर पीएचडी, तो दोनों ने तो पीएचडी कर ली इस पर ही, क्योंकि उन्होंने कोई चीज नहीं छोड़ी। दे वेंट ऑन गूगल्स and they knew everything about it, and all the symptoms which are likely to come, treatment which could possibly come, they were thorough. So first of all, as it said, study as much as possible, go beyond Googles, and even beyond Googles there are articles, there are many good articles, they of course are available. So number one is study. Secondly is the mind management. It's very very important how you वो information लेके आप उससे response कैसे करते हैं, पैनिक या अंडरस्टैंडिंग। मेरी सिस्टर का ये था, she didn't panic, she understood, and then she explained to the family that this is the fact of life, let's understand that, ये है pros, ये है cons,
सो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप हम लोग स्टडी करें. सो वही बात आ गई, अगर हेल्पलाइन हो तो उनको बता भी सकते हैं कि कहाँ पढ़ो, कहाँ जाके से पढ़ के फिर हमारे से पूछो. सो दे कैन बी गाइडेड ऑल्सो कि कौन सी चीज पढ़ो, और या आर्टिकल्स कैन बी मेल टू देम. आज ईमेल लोगों के पास है, या किसी के नजदीक भी है तो आप मेल भी कर सकते हो. सो गाइडिंग एंड इंफॉर्मेशन गिविंग, पर्सनल एफर्ट इज इंपॉर्टेंट. सेकेंडली इज डॉक्टर्स पेशेंस, क्योंकि डॉक्टर्स के पास टाइम नहीं है. वो जब जाती थी डॉक्टर के पास, वो यूके का डॉक्टर बड़ा बिजी होता था, और मेरी बहन 6 जब आप 7 सवाल पूछती थी वो तंग आ जाता था, वो डॉक्टर तंग आ जाता था. वो कहता है वो he wanted to avoid it. The doctor will have to be very patient. So second, third is डॉक्टर के पास भी टाइम हो, या डॉक्टर पास खुद नहीं एज ए स्पेशलिस्ट तो कोई ऐसा हो जो उसको उसकी बात सुने. सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है पेशेंट का. सो आई थिंक मेरा एक्सपीरियंस ये है कि उसके लिए कई बार ये जो यूके के डॉक्टर्स और इंडियन डॉक्टर में बहुत फर्क है जी. मैं आपको बता दूं, इंडियन डॉक्टर्स आर, मैं बायस नहीं बोल रही, इंडियन डॉक्टर्स आर मच मोर इमोशनली कनेक्टिंग, मच मोर इमोशनली कनेक्टिंग. और मैं आपको ये भी बता दूं कि यूके में लोग इंडियन डॉक्टर ढूंढते, जाकर के इंडियन डॉक्टर ढूंढूंगा, खासकर इंडियंस भी नहीं, फॉरेनर्स भी ढूंढते, बिकॉज दे फील इंडियन डॉक्टर लिसन्स मोर, ही इज मोर एंगेजिंग, और वो टू द पॉइंट नहीं कर रहे. सो आई थिंक अनदर थिंग इज द पेशेंट रिक्वायर्स, एंड एज शी नीडेड अ डॉक्टर हु वुड हैव टाइम, बिकॉज वो इतना पढ़ चुकी थी कि वो पूछती थी क्वेश्चन, तो डॉक्टर भी होता था परेशान हो जाता कि तुझे तो मेरे से भी ज्यादा पता है. And as Dr. Sudeep Gupta has also said, that patient sometimes knows more, क्योंकि उसका तो 1 point program है, to know more. So I think this is the way, knowledge-wise and knowing more, and time from the doctor is very, very important. I think I've noticed this. मैम, आई थिंक हम इंडियन डॉक्टर्स जो आपका टॉक सुन रहे होंगे बहुत बहुत खुश हो रहे होंगे अभी. So yes, but हाँ, रेशमा जी, रेशमा सरवार एंड रेशमा कैस्टेलिनो, मैं आपका कीमोथेरेपी एंड ट्रीटमेंट एक्सपीरियंस जरूर सुनना चाहूंगी. प्लीज वन बाय वन, पहले मे बी रेशमा कैस्टेलिनो एंड देन रेशमा सरवार. प्लीज टेक अप दिस क्वेश्चन. Chemotherapy, yes, of course, it was बहुत difficult था, especially they call it the red devil treatment. I forgot the generic name now. Because it's all red in color, and of course, but I had very good family support. My mother was there, my in-laws were there, so my husband had to work, but they supported me very well because a lot of care was required at that time. Then after I had the chemo first, and later I had the surgery. So surgery was manageable. Only the chemo was really bad. Of course, a lot of dietary, because you don't feel like eating at that time, and by God's grace, I did not have any like major side effects, like you know how cells just deteriorate and everything. I did not have all that, but I had, because I was already thin. I was never obese. I was always 40 kgs in my life. Even after giving birth, even only during pregnancy, I was a little bit plump. I don't. Kgs actually underweight, isn't it? Yeah, I was always underweight from. I was always underweight from small, so I did not have those regular characteristics of a breast cancer. You know, the risk factors. Okay. But so handling chemo was very difficult because I did not have that much body weight, so it was difficult. But then. Only because of God's grace and support of family, I went through it, and then the side effects slowly went away, isn't it? All the side effects went away. Side effects chale gaye, and then now you feel that those side effects are no more there, isn't it? No more there, but now I'm on oral chemo tablets because I have brain mets, so I have to be on oral. I'm on oral chemo tablets. Okay. So with that, I still have side effects now, but I've learned how to manage it. Yeah, some days are bad. Yeah, some days are bad, but I have I think I have learned to manage it. I go for my regular test, and I don't you know, every 3 months I go for my brain MRI, and I'm always in contact with my doctors, like how Kiran ma'am said, Indian doctors connect with you in a very emotional way. So even my lady doctor here, she's really a blessing to me. I can WhatsApp her, and she treats me I can't even explain to you like how she is. So. That is really very important. Yeah, she's my radiologist, and even my medical oncologist is also
Very nice. And like how you said, they did explain to me, doctor and patient are a team against an enemy called cancer. So we fight it together. So yeah. So I think the biggest part of the support system is the family and the treating doctor. Yeah, family, treating doctor. We have to also, yeah, our faith, and yes. Just we have to surrender to God, and we cannot keep thinking all the time. Of course, sometimes the thoughts do come. It's natural. We are humans. Yes. But yes, the thoughts Like- do come. So, Reshma Sarwal ji, please, I want to listen to your journey also during the treatment process, क्योंकि बहुत सारे लोगों के लिए ये जानना जरूरी है कि ट्रीटमेंट में क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जो कि आप शायद सबसे अच्छी तरह से बता सकते हैं. मेरा कीमो वाज वेरी स्मूथ ऑल द सेशंस. मुझे How old are you? How old are you? I'll be 67 after 2 months. Okay, जी. तो माय कीमो वेंट वेरी स्मूथली. मुझे कभी उसका साइड इफेक्ट नहीं हुआ. सिर्फ घर आने के बाद मुझे फॉर 2 or 3 years थोड़ा लेथार्जिक फील होता था, विच वाज नेचुरल. बट अदरवाइज नेक्स्ट डे आई यूज्ड टू बी एज गुड एज एनी नॉर्मल पर्सन. कभी भी मुझे नॉटिया और वोमिटिंग और समथिंग, आई नेवर फेल्ट इट. और ना ही मुझे ट्रबल हुई. खाली मेरी वेन मिलने में कभी कभी थोड़ी दिक्कत होती थी. अपार्ट फ्रॉम दैट कभी मुझे कोई ट्रबल नहीं इन ऑल द कीमो सेशंस. Then as I went for radiation also, वो भी मेरा बहुत अच्छे से निकल गया टाइम. एंड जो मेरे 6 month ओरल कीमो के थे वो भी बहुत स्मूथली गए. उस दवाई का भी मुझे कभी भी कोई ट्रबल नहीं हुई. सो द होल ट्रीटमेंट दैट इंक्लूड्स माय सर्जरी ऑल्सो, कभी भी मुझे दिक्कत नहीं हुई किसी भी तरह की. तो मुझे अभी तक विश्वास नहीं होता है कि मैं इन सब के थ्रू निकली हूँ और मैं रिकवर कर चुकी हूँ. Okay, that is actually very pleasant to hear that. मतलब पूरा आइडिया ये है कि no side effects, some side effects, sometimes major side effect, but which might be fully reversible, and sometimes there might be some lingering side effects. लेकिन हाँ, फायदे भी हैं और इसलिए इलाज में जैसा भी रिकमेंडेशन हो वो ट्रीटमेंट भी जरूरी है. मैं सजेस्ट यही करूंगी कि सबको बिल्कुल गॉड पे फेथ रख के और अपनी ट्रीटमेंट फुली फॉलो करनी चाहिए. क्या बात है. So actually मैं देख रही हूँ कि बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो मे बी वी कैन टेक सम क्वेश्चंस. इसमें आई थिंक एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, जो कि जैसे डॉक्टर सुदीप ने एक बार डिस्कस किया, रिस्क फैक्टर्स में हेरिडिटरी कैंसर्स के बारे में या जेनेटिक कैंसर्स के बारे में. और आई थिंक शायद यही क्वेश्चन आ रहा है कि अगर मुझे कैंसर है तो क्या मेरी बेटी को कैंसर हो सकता है, या फिर व्हाट इज द रिस्क. तो सर डॉक्टर सुदीप, इसको कैसे एड्रेस किया जाए? What percentage of cancers are hereditary cancers? What are the ways to find out if cancer is genetic or not? And are there any blood tests also? So what are the pointers and are there any blood tests? Sorry, Priya, can you please repeat your question? हाँ सर, तो जैसे कि मैं यहाँ पे ना क्वेश्चंस देख रही हूँ कि बहुत सारे लोग ये जानने में इंटरेस्टेड हैं कि मुझे कैंसर है, क्या मेरी डॉटर को भी कैंसर हो सकता है. और इवन इन ओपीडीज वी गेट दिस वेरी कॉमनली. और मैंने तो एक बार ये भी सुना है कि एक घर में कैंसर था तो उस घर में लोगों ने शादी नहीं की, ये सोच के कि उस घर में तो कैंसर है तो मे बी मल्टीपल फैमिली मेंबर्स को हो सकता है. सो हाउ टू एड्रेस हेरिडिटरी कैंसर्स? व्हाट आर द पॉइंटर्स की जिसकी वजह से ये पता लगे कि हाँ ये कैंसर जेनेटिक हो सकता है, अनुवांशिक हो सकता है, और किस तरीके से हम कंफर्म कर सकते हैं? So thank you very much. First of all, I would like to really compliment Ms. Castellino for the grace and dignity with which she is enduring her predicament. I am really very I deeply admire you, Ms. Castellino. Thank you, Doctor. So you asked me about family history of cancers. So it is a fact कि अगर किसी को घर में स्पेशली फर्स्ट डिग्री रिलेटिव, तो फर्स्ट डिग्री रिलेटिव का मतलब होता है बहन या फिर माँ या फिर बेटी या फिर भाई या फिर पिता, ये फर्स्ट डिग्री रिलेटिव माने जाते हैं. जबकि अगर वो कजन हो, मौसी की बेटी हो, वो सेकेंड डिग्री रिलेटिव होते हैं. तो अगर फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स में ब्रेस्ट या ओवेरियन कैंसर हो, स्पेशली अगर वो यंग एज में हो, तो थोड़ा सा चांस होता है कि वो हेरिडिटरी हो सकता है. और आजकल कुछ ऐसे रिकमेंडेशन आए हैं कि वो जो एक जेनेटिक टेस्ट होता है जिसको कि जर्म लाइन टेस्टिंग बोलते हैं, वो काफी सारे ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट्स को अपने ब्लड में वो करा लेना चाहिए देखने के लिए कि बाई चांस ये हेरिडिटरी तो नहीं है. उसका एक और पहलू ये भी है कि उन हेरिडिटरी कैंसर्स में कुछ अलग तरीके की दवाइयां भी थोड़ी ज्यादा कामयाब होती हैं.
पर ऐसा नहीं है कि अगर फैमिली हिस्ट्री है ब्रेस्ट कैंसर की या ओवरी कैंसर की या किसी और कैंसर की, तो ये जरूरी ही है कि वो हेरिडिटरी होगा। इनफैक्ट अगर फैमिली हिस्ट्री हो तो हमारे अपनी जो रिसर्च है और हमारा डेटा है उसके हिसाब से 85%, 80 से 85% ऐसी फैमिलीज में कोई हेरिडिटरी कैंसर एक्चुअली नहीं होता है डिस्पाइट हैविंग अ फैमिली हिस्ट्री। तो ये धारणा तो बिल्कुल गलत है कि अगर कहीं पर कुछ किसी को कैंसर हो गया तो वहां पर शादी नहीं करेंगे या कुछ और नहीं करेंगे। देखिए हर किसी को कुछ ना कुछ तो होना है ना। वो अमृत पी के तो कोई भी नहीं आया यहाँ पर और इमॉर्टल तो कोई भी नहीं है। किसी हर फैमिली में कुछ ना कुछ तो होना ही है, हर इंसान को कुछ ना कुछ तो होना ही है। तो मेरा मानना ये है कि अगर ब्रेस्ट कैंसर कम उम्र में हो, स्पेशली बहुत कम उम्र में हो, अगर दोनों ब्रेस्ट में हो, अगर वो एक तरीके का ब्रेस्ट कैंसर जिसे ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर बोलते हैं, इन्होंने बोला ट्रिपल पॉजिटिव, उसका बिल्कुल उल्टा ट्रिपल नेगेटिव मतलब ERP और HER2 नेगेटिव हो। अगर फैमिली में मल्टीपल मेंबर्स को एक पैटर्न में कैंसर्स हो तो ये कुछ ऐसे इंडिकेटर्स हैं कि शायद हेरिडिटरी हो भी सकता है कैंसर। तो वो जो जेनेटिक टेस्ट है अगर वो उपलब्ध हो, अगर वो फिजिबल हो तो वो करा लेना चाहिए। और कुछ अस्पतालों में, हालांकि ज्यादातर अस्पतालों में नहीं ये सुविधा अवेलेबल, लेकिन अगर ये सुविधा है तो एक जेनेटिक काउंसलर्स होते हैं, एक्सपर्ट जेनेटिक काउंसलर्स, वो भी इस बारे में सलाह दे सकते हैं। हाँ, तो सर वो दिस वाज एक्चुअली अ वेरी यूजफुल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन कि एंड वैसे भी जैसे कि आपने बोला कि कैंसर तो किसी को भी हो सकता है और रिस्क फैक्टर्स हो चाहे नहीं भी, तभी भी कैंसर तो हो ही सकते हैं। लेकिन हाँ, कुछ रिस्क फैक्टर्स की वजह से ज्यादा हो सकते हैं। हेरिडिटरी कैंसर्स का पता हम एक सिंपल से ब्लड टेस्ट से लगा सकते हैं। सो दैट वाज रियली वंडरफुली समराइज सर। सो आई थिंक लेकिन एक चीज बता दूं, वो जो हाँ, ब्लड का टेस्ट है वो इतना सिंपल नहीं है, थोड़ा सा नॉन सिंपल है, थोड़ा सा महंगा भी है और वो ज्यादातर अस्पतालों में अवेलेबल भी नहीं है। तो इसलिए वो जो है यहाँ पर हमें, मुझे लगता है ये भी एडवोकेसी करनी चाहिए इस मंच पर कि देखिए हेल्थ तो एक पब्लिक सेक्टर का इशू है, पब्लिक हेल्थ इशू है। और हालांकि प्राइवेट अस्पताल हैं, मगर हमारे देश में 98 या 99% लोग जो है बहुत महंगे अस्पतालों में नहीं जा सकते, 95% तो एटलीस्ट नहीं जा सकते। तो ये हमारी जिम्मेवारी है एज अ सोसाइटी दैट वी एस्टैब्लिश गुड फैसिलिटीज वेयर एवरीवन कैन एक्सेस। तो जैसे हमारे यहाँ टाटा मेमोरियल सेंटर है, हम लोग सरकार के अधीन है, हमारा डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी का हमारा अस्पताल है। तो हमारे यहाँ पर ये काफी सारी सुविधाएं जो हैं ये बहुत ही एट नो कॉस्ट और एट वेरी नॉमिनल कॉस्ट दे आर अवेलेबल। पर क्या है ना कि सारे इंडिया में एक टाटा मेमोरियल सेंटर, एक एम्स और एक RDR और एक दो और ऐसे अस्पतालों से काम नहीं चलता, क्योंकि हमारी आबादी तो 140 करोड़ होने वाली है। तो यहाँ से मेरे को लगता है प्रिया जी आप तो बहुत बढ़िया बोलती हैं, आपको ये भी एडवोकेसी करनी चाहिए पब्लिक सेक्टर में वी शुड एस्टैब्लिश गुड फैसिलिटीज फॉर ऑल दीज थिंग्स। वरना जो है हम थ्योरी में ही बात करते रह जाएंगे, उसका प्रैक्टिकल ट्रांसलेशन जो है वो थोड़ा कठिन है। नहीं सर, आई एम श्योर motivators like Dr. Yes, like you and Kiran Bedi ji, I think definitely this platform might actually give rise to something big. I think surely Lupin guys must be listening and maybe many more people, क्योंकि because I know कि काफी ज्यादा audiences मुझे बताया गया है कि जुड़े हैं अभी इस प्लेटफॉर्म को यूज कर रहे हैं, देख रहे हैं अभी। So maybe this might result in something big and useful and worthwhile. Because you know one of the fundamental principles of justice is equity. कहने का मतलब जो सुविधाएं हैं वो उसी को उपलब्ध नहीं होनी चाहिए जो उसके लिए पे कर सकता है, या जो अपर इकोनॉमिकली अपर सेक्शन ऑफ सोसाइटी में, वो हर किसी को एटलीस्ट कुछ बेयर मिनिमम स्टैंडर्ड हर किसी को अवेलेबल होना चाहिए। तो इसका ये जो है बहुत जरूरी है और आपके माध्यम से मैं जो है सारे, और ये सिर्फ सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, पूरी सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमें हेल्थ को और ब्रेस्ट कैंसर को, हर कैंसर को, कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस को थोड़ी हायर इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी। बिल्कुल सर, बिल्कुल। चलिए शायद मैं ज्यादा बोल रहा हूँ तो मैं अपने आप को म्यूट कर लेता हूँ। आई थिंक किरण जी भी इस बारे में कुछ बोलना चाहती हैं, प्लीज किरण जी। नहीं डॉक्टर साहब, आपने इतना कुछ अच्छा बताया, इट्स बीन वेरी एजुकेटेड डॉक्टर साहब, बट लुपिन कैन टेक अ लिटिल मोर प्रोएक्टिव रोल
is to bring cancer specialists around the country regularly together and create a combined cancer helpline, and then map whatever are the facilities where. And I think ask for 100% ATG benefit for cancer research. Okay. You have a case for this. Because you see, look at the amount of COVID ke liye, because COVID hit economy, the world came together. Cancer hits every family. COVID hit economy. Cancer hits family. But it weakens that family in some way or the other. Survivor is rejoicing, but loss hits economy. It's economy of the family. Now, in this case, if it's a woman, then it's a mother loss of the mother, right? And mother's loss means loss for the family, children, particularly when children lose a mother, and losing a mother at an early age, or having an unhealthy mother not proactive or actively nurturing the child, impacts the lives of that family, those children, and then they are affected. I think it's a case for full 100G, full ATC research benefit for cancer research. Yes, ma'am. But Lupin and all other companies must bring all cancer specialists together to think together, to brainstorm together, not work in silos. Doctors should not be working in silos. They need to come together. There's no competition to save life. No competition to save life. It's collaborative research. And then pool in what are the trends which are coming from the patients. Therefore, Cancer Helpline will help us pool in. That means Cancer Helpline. So that's what I'm looking at, doctor, is that we need to, and who better than you people who are passionately into it, historically into this, is to come up with quickly, like they came up with COVID helpline. Kyun? Because of a necessity. But ये भी तो घर की necessity. आज कोई भी घर ऐसा नहीं है जिसने cancer survivor है या cancer lost. There is no family which is today. हर एक को डर लगता है कि किसकी family में क्या हुआ, बोलते नहीं है. And you're very right, बोलते नहीं है, लोग बताते नहीं है. You're right, family stigma भी समझा जाता है कि नहीं बताने की क्या जरूरत, नहीं बताओ मत कि मुझे ये प्रॉब्लम है, सफर करते हैं और घर में ही बात रहती है, उससे बात बढ़ती है. So I think it's a very important that we take this movement forward, bring cancer. You must be having a society and a cancer association, but all doctors all over should become one digital world, where you all regionally must come together and see what's happening and the trend, and then become an advocacy for the government of India. Ask for full research tax benefits for research and like we created a vaccination for COVID, and see the goodwill which India has earned because of Covaxin or Covishield we have. So if we can do that, and then don't patent it, make it available like this, I think you will get a Nobel Prize. You need to have Indian Nobel Prize for cancer research. Work for Indian doctors in cancer, work for next 5 years, Nobel Prize in medicine for cancer research. And iske liye pharmacies must come together by creating these helplines, creating research bodies, right? And investing a portion of that. And aapke to CSR mein bhi hai. You're all wealthy, crorepati's, you're all. So 2% of your research can go 100% in this. 2% of your from corporate social response can go 100% in this. So why can't pharmaceutical companies go together? Say, yeah, 2% will go entirely into research, and your research allowed. You're getting your 2%. So aapke paas 2% already hai. So jitne pharmaceutical companies hai, wo apna 2% dedicate kar de for cancer research. Look at, you will get a Nobel Prize. I think you have the money. You only need to think and have a vision. India for Nobel Prize 5 years from now on cancer research, on breast cancer, let's say that. Prevention and treatment and early cure. And these helplines. I say have a package plan. Prepare for this kind of, I'm not just saying only for an award, but I'm saying quality research in such a way that Nobel
recognizes you, said, "Ye hua hi nahi." I'm shocked. See, look at the kind of investments we are making in wasting money in warfare, weaponry today. What about a challenge, particularly like cancer? We're not equally, because it's not COVID, it's not economy, it's a family economy, not a national economy. So I think let's treat this also as a family economy, which impacts national economy. It's like a road accident, when a person dies in a road accident. See, it's an individual failure. It's an individual loss. Her road accident takes away an earning member because of head injury, not wearing helmet. But there's no such movement because of children suffer. Family suffers. There's no national movement, no anger. I've suffered it myself. I've gone through as an administrator in Puducherry, when I was saying helmet must. My God, tragically, Mr. Agarwal, you know what happened? Politicians came in the way. Nahi helmet nahi zaruri. Why? Because politically it was not acceptable and people were losing life. But that life, family got left behind. They had a tussle between me and the politicians. I said, no, I have to save a life. They said, no. And less said the better. There was a Supreme Court order on this. Yet politicians defied it because of political correctness of few people. And they smashed helmets on the road saying helmet nahi ho sakti. I'm saying why these diseases are family impacting. COVID was economy affecting. And it was the world over. And see how the 2 vaccines came within a year? Because it was an endemic. This is cancer endemic. Why does it work? Every ghar ki baat hai. Every country is suffering. So why can't let India take a lead? So I think, Lupin, you have a great opportunity. Bring together pharmacists, bring together cancer doctors, and you've got such wonderful doctors like the ones you have today on the panel. I am thrilled to see, and I believe in the intelligence of the Indian doctors. I must tell you, world over, हर एक को ढूंढता है. मैं भी UN में posted थी, दांत में दर्द हुई, मैंने कहा please get me an Indian doctor, क्योंकि I can relate better with an Indian doctor. फिर आपको Indian doctor नहीं मिला. So, but that was actually a very, I think it gave me a lot of thoughts, and I think it gave a lot of people a lot of thoughts from what you rightly said, rightly pointed out. But I think time की काफी कमी हो रही है, and we need to wrap this. But I must tell you, Dr. Tiwari, you were brilliant. Oh, thank you so much, ma'am. The motivation comes from people and Reshma Castellino, Reshma Sarwar, and our survivors. That's why the Indian doctor, you are such wonderful communicators, both Dr. Gupta and Dr. Tiwari. You're brilliant. Dr. Sudeep Gupta, can I say my namaste and thank you to you? आपने इतना अच्छी तरह समझाया. हमें अभी आपसे एक क्लोजिंग मैसेज चाहिए, आपसे भी और सर से भी चाहिए. तो पहले मैम आप और उसके बाद फिर सर, and then we'll wrap this talk. मैंने तो कहा है कि Indian pharmacists and Indian doctors should come together to go in for the next 5 years of Nobel Prize. और उसके लिए have a roadmap, have a strategy, call for a conference, and pull in your 2% of the CSR into research. I guarantee you, आपको 1.5 साल में 2 साल में vaccination आएगी, जरूर आएगी, मेरा विश्वास है. सिर्फ उसमें फोकस करने की जरूरत है. And go for younger doctors, the younger scientists coming in this field, catch them young. Youngsters को उनके पास fresh दिमाग है, and collaborate, no problem. Collaborate with the best country available and go in for a vaccine. Go in for a good early breast prevention vaccine. Yes, that's very well said. Dr. Sudeep, I think yes. So my closing remarks are that first of all, I deeply admire and once again commend the courage and determination of Reshma Sarwar, Reshma Castellino, and the third lady who's incognito here. It is truly commendable. My second message is that we should not be scared of the disease called cancer, and definitely not breast cancer. We should not ignore any symptoms. We should contact the healthcare system as soon as possible at the slightest suspicion. My third message is that the government of India has actually done quite a lot in terms of combating not only cancer, but also other non-communicable diseases. And I think all of us know that donations for research, including cancer research,
are actually 100% exempt from tax under Section 35(1)(2) of the Income Tax Act. So the government of India has truly done a wonderful job. My fourth message is that hospitals like Tata Memorial Center and AIIMS and others. So I just wanted to say in the end that Tata Memorial Center originally started in Mumbai, and we have Tata Memorial Hospital and Actrec, of which I am the director. But we have now 8 other hospitals, all under the umbrella of the Department of Atomic Energy, the Government of India, and all of them dedicated to serve the underprivileged patients in India. And we need many, many, many more such hospitals in a hub and spoke model, so that cancer care is delivered, high quality cancer care is delivered to everyone. And my last message is that our colleagues from Lupin have done a wonderful job in organizing this event, and especially in getting an icon like Dr. Kiran Bedi. Whenever she says something, it actually amplifies the message and acts as a force multiplier. So we hope that you will have future occasions when we will have the opportunity to interact with Dr. Bedi on other issues as well. So thank you very much, colleagues from Lupin, and I will end there with a good day and good wishes for health and happiness to everyone who's here today. Thank you. Thank you. Thank you. Very well summed up, and you heard a wonderful discussion on the various aspects of breast cancer. So the idea is that breast cancer is treatable, and breast cancer death in many cases is surely preventable. But please don't ignore, fight the myths, fight the stigma, and take a leap forward. Thanks to everybody, and thanks to Lupin for this wonderful opportunity and session. Good night. Thank you very much. Good night. Take care. Thank you. Saurabh sir, you are on mute. सर आप म्यूट पे हैं. Jay, we are off air.